So this today's interactive session is for Civil Services Examination 2026. Here are all people, they are physics optional students. And as many number of people are sitting here, more than double are online watching by this camera. And this is YouTube live also. Okay, sir. I was also online student. So almost whatever you will be saying here, it will be reaching to so many people. So definitely Civil Services Examination 2026, whole plan you know. For qualifying this examination, your score in there is my DPV equation of success. That person should aim about 825 to 850 marks in the mains exam. If you aim 825 to 850, then interview becomes redundant. Even 165 with 165 marks in interview, you can get into your desired service. And in scoring 825 plus, optional plays a great role. And physics is one of the best optionals, because this optional this year has got the highest marks, 318. Every year highest marker in physics is 310 plus, every year almost. And in physics optional, scoring 275 plus is not difficult. 252 to 275 is not difficult at all. If you follow whatever is being done into the class, then 252 to 275 everybody should easily get. Above 275 requires little more efforts over whatever I am doing the class, over my class notes. But above 300, which is outstanding and A grade according to me in this exam. And with this reference level, already I told what are the marks of the topper this year, AIR1. What are the total marks of AIR1 written? 843, only 843. And marks in optional, उसके marks कितने थे optional में? 274 or something, correct? That kind of marks topper had got. But in physics optional, 274 or 275 marks are regarded as ordinary marks. Because in physics optional, best good marks means 300 plus. So I will give the dash to him first, because he will speak as usual. This is our introduction to topper series. We keep on inviting. This year more than 19 people with the physics optional have qualified. And in our institute it is 34 plus. 19 physics के हैं, 2-3 मैथ्स के हैं जिसमें छूट गए हैं, उसमें प्रिंट नहीं हुआ है. इनफैक्ट मैथमेटिक्स के तो हमने इसके रिजल्ट को स्किप कर दिया. एंड 2-3 रिजल्ट्स आर विद जीएस आल्सो, जनरल स्टडीज. केमिस्ट्री के तो 14 हैं, 14 रिजल्ट्स. 14 results will chemistry optional. We are number 1 in the country in physics, chemistry, both the optionals number 1. In mathematics we are number 2 right now. Up to 2014 maths में हम number 1 ही थे. So and tomorrow I will be organizing a seminar for the people who are going to take prelims of 2026 GS Foundation under my mentorship. Tomorrow at the same time, 5 o'clock. So today's show is Angadji Saggu. And very important thing, one thing which I always say, that what I gathered in Supreet Singh Gulati, my best student Supreet Singh Gulati. Why I call best? Third attempt he came to me, and none of these third attempts he went up to interview. And I said I found him very humble, down to earth. He was BTech from IIT Madras. CGPA was 8.4. These were the first interaction when he came, and he came after taking the fourth prelims. This दिन prelims का next day he came to me, and I observed that boy is very simple, down to earth, humble. And I said, I will not be able to make you IAS, then I will falter in my job as a teacher. If I have been a teacher, and if I can identify the personality traits which are required to be successful in civil services examination, then you have got all the things going. Because first aim of Vidya, knowledge का पहला काम क्या है? विद्या ददात विनयम, विनयादयात पात्रताम. Vidya dadat vinayam. Vinay means humbleness. No other profession, no other competition checks the humbleness. Humbleness is checked only by civil services examination. That is why when I started this batch, I gave you a task. Find out the average marks of the persons in within 100. If anybody is scoring the All India rank 100, what are the average marks of personality test? कैसे average निकाला था तुमने? सम किया था सारे के marks, सम किया था, और फिर 100 से डिवाइड करा के एवरेज मार्क्स निकाला. एवरेज मार्क्स कितना था? 180 था.
ये बड़ी बात बता रहा हूं। ऑल इंडिया रैंक 100 तक के लिए एवरेज मार्क्स पर्सनालिटी टेस्ट का कितना था? 180 मार्क्स था। 180 मार्क्स से एवरेज मार्क्स था आईएएस के लिए। सो आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज पीपल क्वालिफाई only due to good personality. There is no substitute for good personality, and good personality means humbleness, down to earth, grounded. ये भी वैसा ही है ये भी वैसा ही है जैसे वैसे देखा जब आया that I said। और एक चीज कॉमन ट्रेड, बाकी चीजों से खुश नहीं होता हूं। नॉलेज तो सबके पास आ जाएगी, पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान लिख लोगे, मार्क्स आ जाएगा रिटर्न में, लेकिन जो इंटरव्यू का मार्क्स है, जो पर्सनालिटी, जो विनम्रता है, तेरे अंदर भी है, इसके भी एक सरदार है। देखो इसका क्या नाम है? सुखमन सिंह, सेंट स्टीफेंस कॉलेज का टॉपर है। ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज का फिजिक्स का टॉपर है। जानते हो ना कितना अच्छा है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगली बार इसको पास हो जाना चाहिए। अगर ये लगा रहे नहीं, दो चीजें होती है इसमें। ये एक ऐसा आशीर्वाद मैंने किसी को दिया था पहले, 4 अटेम्प्ट लग गए उसको पास होने में, क्योंकि उसने आशीर्वाद को फॉलो नहीं किया। मैंने उसका भी कभी कहानी सुनाऊंगा मैं। वो अभी बहुत बड़ी 24th रैंक आई थी बाद में उसको, लेकिन उसको भी मैंने ऐसी क्लास में फर्स्ट डे कह दिया तू पास हो जाएगा। विनम्रता देखी, फिर वो इधर उधर समय खराब करने लग गया। तो फोकस्ड होना पड़ता है। सो आई गिव डैश टू अंगद जी। ही सेटिस्फाइड माई फर्स्ट क्राइटेरिया, क्योंकि नॉलेज में सेकेंडरी टर्सरी गिनता हूँ, प्राइमरी होती कितना विनम्र है और कितना ग्राउंडेड है, जिससे कि जो हमारी इंडियन ब्यूरोक्रेसी है दैट इज इनरिच्ड, दैट इज नॉट इनरिच। क्योंकि यू नो in NCERT books, what is the crux of NCERT books? Whole summary of NCERT books, or whole summary of my education process. First, overall the contents of the NCERT books. What is the first page? Gandhiji's talisman. छपा होता है ना NCERT की बुक्स में, Gandhiji's talisman लिखा होता है। What is Gandhiji's talisman? That means that Gandhiji's talisman, whatever the first page of NCERT textbook, is more powerful than the content of the book. What is that? You must be capable of wiping out the tears from the eyes of the person, last person in the row. That whole purpose of education is to wipe out tears from the eyes of last person in the row. जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है उसकी आंखों से आप आंसू पोंछने में कैपेबल हो क्या? मतलब जिसकी कहीं सुनवाई ना हो रही हो, उसकी सुनवाई ऑल इंडिया सर्विस का ऑफिसर करता है। अगर आप ऑल इंडिया सर्विस में, मतलब आईएएस में, आईपीएस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। सब सर्विस है ये। मैंने अंतर बताया था सर्विस में और फोर्स का क्या अंतर है। पुलिस फोर्स भी होता है, पुलिस सर्विस भी होती है। आईपीएस इज अ सर्विस। सर्विस के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज humbleness, tolerance, that kind of property, characteristics, traits are required. Good. So now it is on you. एंड मैं छोड़ रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। और वो कलाकार आ गया है, वो जो बना रहा है। तो अब तुमको 15-20 मिनट अपने बारे में जो जो बताना है, जस्ट यू वट एवर वे यू आर, प्लीज डू कम, वट एवर यू कैरी ऑन। देन देर मस्ट बी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। देन देयर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस। एंड आधा घंटे में 35 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, तो मेरी 1 घंटे की, सवा घंटे, 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। क्लास तो होनी है, क्योंकि ट्यूटोरियल सीट खत्म करनी है। आई एम वेरी फोकस्ड, एवरी क्लास इज काउंटेड, बट हिज विजिट वाज आल्सो ड्यू। थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट सर ने नेम बता दिया, रैंक बता दी। फिजिक्स ऑप्शनल के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ मेरा स्कोर क्या था। पेपर 1 में आई स्कोर 96 बिकॉज ऑफ माई ब्लंडर्स, एंड पेपर 2 आई गॉट 164. That was with regards to physics optional. In GS I scored 422 and in interview it was 187. This was my second attempt. In first attempt मैं pre-clear नहीं कर पाया था, and I think एक ये basic introduction हम कुछ, आप पहले मैं कुछ बताऊं कि would you directly question answers रखें? आप अपनी जर्नी बता दें। Journey, okay. तो I started after my I'm a mechanical engineer 2022 बैच फ्रॉम पेक चंडीगढ़। ठीक, सो हमारे कॉलेज में इंटर्नशिप थर्ड ईयर में होती है, 6 सेमेस्टर। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद माई एनसीईआरटी रीडिंग, एंड इन माई फाइनल सेमेस्टर तब मैंने अपना ऑप्शनल स्टार्ट किया था फरवरी में फ्रॉम ऑनलाइन। इसीलिए मैं ऑनलाइन स्टूडेंट था बिकॉज आई वॉज इन माई कॉलेज, चंडीगढ़ में होता था क्लासेस यहाँ पे। सो आई स्टार्टेड विद माई ऑप्शनल ऑनलाइन अर्ली। वो अर्ली की वजह यही थी कि आई थिंक अभिषेक शर्मा जी, उनके भी डाउट था कि जीएस और
ऑप्शनल को एक साथ कैसे मैनेज करें कि टाइम बहुत लगता है. दैट वाज द रीज़न कि मैंने अर्ली स्टार्ट किया था ताकि बाद में मेरे पास टाइम फ्री निकल आए. आफ्टर दैट इन जून, आई थिंक essentially May 28th या 26th May को I started with my GS preparation. September तक there was an overlap with optional and GS. उस टाइम पे हेक्टिक था, जैसे आई थिंक आप सबको भी होगा थोड़ा, दो क्लासेस एक साथ और नई इन्फॉर्मेशन, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की नई इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना सारा कुछ विद करंट अफेयर्स. दैट वाज हेक्टिक टिल देन. उसके बाद एक बार ऑप्शन की क्लासेस ओवर होगी तो काफ़ी टाइम फ्री हो गया. एंड 23 आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट. उसमें आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स. 75 आई थिंक कट ऑफ थी, मेरे 67 68 थे. सी सेट आई कुड क्लियर आई थिंक 97 99 नंबर थे उस टाइम. सो जब नहीं हुआ था, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद माई मेंस. जब प्री नहीं हुआ था, रादर देन गोइंग फॉर कि मैं प्री ही दोबारा दूँ, अगले साल प्री की तैयारी ही करूँ, आई वेंट फॉर मेंस. क्योंकि एक मेरी जो ओपिनियन रहती थी या फिर आई हैड दिस कंसिडरेशन कि पेपर पूरा क्लियर करना है एक ही बार में. इट्स नॉट स्टेजेस और इट्स सर्टिफिकेशन तो नहीं है कि आपने पहले स्टेज 1 कर लिया फिर स्टेज 2 कर लिया. यू हैव टू क्लियर द होल एग्जाम इन वन गो. और उसमें सबसे मुश्किल फेज़ मेंस का ही होता है क्योंकि टाइम भी कम है और पेपर भी सबसे इंपॉर्टेंट मेंस ही है. दैट इज़ गोइंग टू मेक योर ब्रेक योर रैंक. और रादर आई से दैट इज़ गोइंग टू इंश्योर वेदर यू विल बी इन द लिस्ट और नॉट. इंटरव्यू के साथ यू कैन इम्प्रूव योर रैंक एंड स्टफ लाइक दैट. टिल December I did my mains like completely from essay to GS to optional. Everything I was through with mains in and out. Essentially my mindset was कि अगर जब 2 महीने 3 महीने मेंस की तैयारी करनी है, कुछ भी मेरे लिए नया ना हो, all I have to do is practice. All I have to do is कि रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है. From January my prelim started. उसमें I tried to give 3 revisions. Essentially first revision was for 2 months total syllabus of prelims and along with mock tests and PYQs. And after that 1 month and 1 month second and third revision. लास्ट जो मंथ रह गया था क्योंकि मई में होता है तो 5 महीने थे, आई ओनली डिड माई PYQs अलॉन्ग विद बेसिक रिवीजन एंड फोकस वॉज ऑन PYQs कि PYQs को जितनी बार रिपीटेडली करता रहूँ और एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आ जाए. क्योंकि जो एग्जामिनर्स हैं दे एक इफ़ यू कीप डूइंग इट एक आइडिया होने लग जाता है कि ओके व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर. वो स्टेटमेंट्स किस माइंडसेट से डाल रहे हैं, अगर कोई स्टेटमेंट को गलत करना है या सही करना, वो कैसे कर रहे हैं, वो एक आइडिया लग जाता है बार बार अपने PYQs को सॉल्व करने से. क्योंकि जनरली ये भी कहते हैं कि एक बार कर लिए तो आंसर याद हो गए तो अब PYQs करने का कोई बेनिफिट नहीं है. वो ऐसा नहीं होता. इफ़ यू डू इट कंटिन्यूसली एनालाइज करो कि ये स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट गलत की है वो क्यों की गई है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे गलत है कैसे सही है, वो सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी. उसके बाद आई was through क्योंकि second attempt है. prelims I was through. I scored I think 96 in GS and 113 CSET. After that in September it was mains again. I was through, तभी यहाँ हूँ. And after that interview was on 30th January मेरा, so थोड़ा जल्दी था. इसमें definitely एक जो मैं फाउंडेशनल चीज़ कहना चाहूँगा कि वो थी PYQs and answer writing was my foundation of the preparation. जैसे मैंने 22 अगर जून में स्टार्ट की, सो बाय द टाइम मेरा पहला सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया था, ज्योग्राफी था जो मैंने पहले फर्स्ट सब्जेक्ट किया था. तो जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ था मैंने उसके PYQs के मेंस के आंसर लिखने शुरू कर दिए थे विदाउट वेटिंग कि कोई मेंस की क्लास लगाए, मेरे को बताया कि ऐसे आंसर लिखने हैं कि कैसे लिखने हैं. आई हैड स्टार्टेड ऑन माई ओन. उसको करने का तरीका सिंपल था. आई यूज़ टू मॉडल आंसर की एक बुकलेट सबके पास होगी, अदरवाइज टिल 2013 एंड इवन उससे पहले भी ऑनलाइन अवेलेबल है. सारे मॉडल आंसर्स के सारे क्वेश्चंस के PYQs के मॉडल आंसर्स अवेलेबल है. सो यू राइट द आंसर, यू check it with the model answer कि demand, are you meeting the demand, if you can get any additional content, if you can get additional presentation. So by the time I was writing mains I had written about 17 or 1800 answers, even more than that. So that was my basis of preparation. These were my efforts. After that it is a paper जिसमें एक luck या blessings का बहुत रोल होता है. I am from नामधारी community, so सदगुरुदेव सिंह जी, his blessings were paramount. My parents की blessing and my teachers, वाजपेयी सर, उनकी blessings and guidance. It was very important. तो एक उस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि एफर्ट्स येस सब लगाएंगे, एफर्ट्स सब लगा रहे हैं, बट एक एलिमेंट होता है जो अनकंट्रोलेबल एलिमेंट है, वो वहाँ से आई थिंक विच हेल्प मी गेट थ्रू. सो दिस वॉज माई जर्नी विद रिगार्ड्स टू. अगर डेली प्लान सर कहते हैं उल्टा लटकना पड़ेगा, जो 8-10 घंटे पढ़ना है, तो रिगार्डिंग दैट मेरा शेड्यूल होता था कि मैं 11 से 12 घंटे शेड्यूल रखता था. बट इफ़ आई कुड गेट 8 to 9 hours of study out of those 12 hours, I would consider that a good day. अब
एम्बिशन रखिए कि येस आई विल डू एज मच एज आई कैन, कि अगर 12 घंटे मेरे पास टाइम निकल रहा है, आफ्टर आपने कम्यूट करना है, रेस्ट भी होगी, सोना है, खाना पीना, एवरीथिंग जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद आप 12 घंटे 13 घंटे अगर जो बच रहे हैं उसको डेफिनेटली शेड्यूल कीजिए। बट डिप्रेस मत हो जाइए कि मैं 13 घंटे एवरेज नहीं निकाल पा रहा। 8 to 9 hours, 7 to 9 hours ऑफ एवरेज इज़ गुड। और अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से कि ऐसा भी होगा कि आपकी कभी प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। आई विल से देवर डेज मैं 12-12 घंटे वीकली पढ़ पा रहा था, एंड देवर डेज में पूरा हफ्ता नहीं पढ़ा। इट विल एब एंड फ्लो, इट विल गो अप, इट विल गो डाउन, इट विल गो अप, गो डाउन। जो अगर कोई नए हैं उनके लिए तो नहीं, बट जो पहले से प्रेपरेशन में, लेट से साल या 2 साल हो गए उनको प्रेप में हैं या इस साइकिल में, उनको पता होगा कि ऐसे होता है। सो इससे घबराना नहीं है। पॉइंट इसमें सिर्फ ये है कि व्हेन यू आर एट द लो पॉइंट ऑफ योर प्रोडक्टिविटी, उससे बाहर आने की करनी है कि हाउ क्विकली आई कैन कम आउट ऑफ इट, हाउ क्विकली आई कैन गेट टू माई एवरेज और माई गोल, जो 12 घंटे 13 घंटे का गोल है। 15 घंटे भी होती है पढ़ाई, बट दैट इज़ क्लोज टू मेन्स, लाइक 3-4 वीक्स आउट मेंस, जब 3-4 हफ्ते रह जाए मेंस के बाद, तब होती है पढ़ाई। एवरीबडी कैन, तब यू कैन सस्टेन फॉर अ मंथ, लेट्स से 15 घंटे यू कैन सस्टेन। तो इसका तो एक और मैं फार्मूला मेरे पास होता है कि 7 घंटे की अगर नींद है, हाफ एन आवर यू हैव टू ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और सुबह की रूटीन का आधा घंटा, तो 9 घंटे हो गए, बच्चे 15 घंटे। उसमें से आई एम सेइंग कि इफ़ यू कैन एवरेज आउट 8 hours विच इज़ ओनली 50%, योर चांसेस विल इम्प्रूव। और सेकंड, वो फोकस्ड होने चाहिए, जो 8 घंटे 9 घंटे 7 घंटे वट एवर जो भी है, दैट दो शुड बी फोकस्ड। ऐसे डिविएट नहीं होना जो टीचर्स कह रहे हैं। सी यूपीएससी प्रिपरेशन का जो बेसिक्स हैं वो, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड करंट अफेयर्स, अपडेशन ऑफ करंट अफेयर्स, इंटीग्रेटिंग इट विद योर आंसर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। दोज आर द बेसिक्स। वही बेसिक्स हम भी करते हैं, अच्छे से करते हैं, बट उनको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सो दिस वाज अ बेसिक जर्नी मेरा जो रहा है। सो अब क्वेश्चन आंसर रखते हैं, आपको उसमें से जो भी पूछना है। हाँ जी। Sir, you said you started your JS from June and you was through with the discipline, with mains, or I think you did all your mains preparation in June to December. Yeah, December 2023. Yes, I mean 1.5 year. Slot was same like June to December. Yeah, You started from June 2022 and December 23. 1.5 year. Like with regards to this, I would like to say, generally we experience the syllabus is a little, the pace of the syllabus is slow for GS, right? This is an exam where you have to take responsibility for yourself, you have to take accountability for yourself. Same thing was happening with me. The syllabus for me was going a little slow. So after about 6-7 months, I've done self-study only for GS. Economy I've done on my own, environment I've done on my own, ancient and medieval I've done on my own, culture I've done on my own. These subjects I've done on my own. I've not taken any classes for these subjects. So be very particular that if you have set a timeline for certain year, let's say 2026, if you have set a timeline, if something is not fitting in your timeline, either change your schedule or change your timeline, but never ever go to the exam without preparation. So this UPSC is asking for bureaucrats. They expect you to be responsible. You are, that is why even the requirement is you have to be a graduate. Graduates are supposed to be people who will be going into the workforce. So they are supposed to be responsible. So please be very accountable and mature and be responsible for your time and for your decisions. I think that will really help you. Any other questions? So paper 1 में with regards to physics option, paper 1 में strong point जैसे कि आपका 2 था या फिर सारे strong थे? मेरे 96 आए पेपर 1 में। सो आई वुड से देयर वर मोर वीक पॉइंट्स देन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, बट उसमें एक जो इशू गलती मेरे से हुई, दैट आई वुड से इज़ अ प्रैक्टिकल मिस्टेक बहुत बड़ी जो मेरे से हुई थी। आई यूज़ टू सॉल्व द पेपर इन अ डिफरेंट वे। लाइक मैं पहले कंपलसरी क्वेश्चंस करता था, फिर ऑप्शनल क्वेश्चंस करता था, राइट। बट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आई चेंज माई स्ट्रेटेजी। मैंने पहले जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, जो 6 में से हमने 3 करने होते हैं, मैंने पहले वो किए। सो उसकी वजह से मेरा टाइम पूरा हिल गया। सो जो स्ट्रेटजी आपने 2 महीने 3 महीने आपने फॉलो किए, या फिर थ्रू द स्ट्रेटजी थ्रू द योर जर्नी आप फॉलो करोगे, वेदर इट बी फॉर प्री और इट बी फॉर मेंस, उसको कभी ऑन द डी डे अबैंडन मत करना। क्योंकि पेपर 2 में आई स्टक टू माई स्ट्रेटजी एंड आई स्कोर्ड 164।
उसमें मेरे को टाइम की भी कोई इशू नहीं आया, नाइदर देयर वाज एन इशू इन सिलेक्टिंग द आंसर्स, नो आई डिड नॉट फेस एनी इशूज़, वेयरएज उसमें मेरे लिए टाइम इशू हो गया था। तो एंड सेकेंडली आई मेड सम ब्लंडर्स ऑफ द टाइप कि मैंने सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ या +3 को उल्टा कर दिया था, ऐसे ब्लंडर्स करके आया था मैं। सो वो भी मे बी इन अ वे टाइम इशू की वजह से हो सकता है, बैक ऑफ द माइंड होता है कि करना, सो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। उसमें अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात करूँ तो मेरा सेक्शन ए वॉज स्ट्रॉन्ग, सेक्शन बी वॉज ओकेश इन पेपर 1, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स। करंट अफेयर्स को मतलब कैसे उसको मैनेज करना है, और इकोनॉमी अपने खुद से पढ़ा है तो इकोनॉमी का मतलब करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर से या फिर कैसे उसको मतलब कनेक्ट किया है? See, current affairs, my thing was I used to read one newspaper and one magazine. Newspaper is your basic understanding. Editorials will give you a basic understanding of the things that are going on from an expert perspective. सर अभी भी कह के गए देर इट इज़ एन हम्बलनेस, उसमें एक चीज़ ये है कि एक्सेप्ट कि आपको नहीं आती चीज़ें। सो द पीपल हु आर राइटिंग दोज एडिटोरियल्स आर पीपल हु हैव एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड्स विच इज़ लार्जर देन आवर एज। हमसे जितनी हमारी एज है उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। सो दैट इज़ यू लर्न फ्रॉम दोज एडिटोरियल्स, दे विल गिव यू कंटेक्स्ट एज वेल एज बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। रीड योर फाउंडेशनल बुक जो बेसिक बुक है, या इधर यू आर टेकिंग अ क्लास। आफ्टर दैट फॉर करंट अफेयर्स माई थिंग इज़ रीड द न्यूज़पेपर एज वेल एज अ मैगजीन। मैगजीन में जो करंट अफेयर्स होंगे उनके साथ दे ऑल्सो गिव यू स्टैटिक रिगार्डिंग द करंट अफेयर जो भी है। लेट्स से रेपो रेट अगर चेंज हुआ है तो रेपो रेट का सारा स्टैटिक भी आएगा साथ में, राइट। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात चल रही है एनीथिंग तो करंट अकाउंट डेफिसिट का पूरा स्टैटिक भी आएगा। सो दैट वे यू कैन लिंक। सेकेंडली जो तरीका है दैट इज़ राइटिंग PYQs, as many PYQs as you can write, because when you write answers and after that you revise or read editorial, वो questions दिमाग में घूमेंगे, क्योंकि UPSC के क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं होते। दे आरंट आस्किंग लाइक दे आरंट लुकिंग फॉर नॉलेज इन यू, दे आर लुकिंग फॉर यू टू बी अ सूटेबल ब्यूरोक्रेट थ्रू नॉलेज। सो एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो जब आप वो क्वेश्चंस लिखोगे ना तब आपको समझ आएगा कि UPSC किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछता है और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो क्वेश्चंस लिखने के बाद उनके लेट से मॉडल आंसर्स पढ़ के आपको कंसेप्ट थोड़ा समझ आया, उसके बाद जब आप रिवाइज करोगे या एडिटोरियल्स पढ़ोगे सिमिलर थीम से, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, उसमें ये पर्सपेक्टिव्स दिए गए थे मॉडल आंसर में, आई कैन एडिशनली राइट दिस पर्सपेक्टिव, ये कुछ पर्सपेक्टिव है, ये कुछ है। सो दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस। द मोर यू राइट, द मोर यू रिव्यू एंड देन मोर यू रीड, वो इंटीग्रेट होने शुरू हो जाएंगे। साइंस एंड इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट का प्रोसीड्योर क्या रहा होगा चाइल्डहुड, इनको कैसे अप्रोच करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे GS2 एंड GS3 जो है मेंस का, दैट इज़ मेजरली करंट अफेयर्स बेस्ड। ओके, प्रीलिम्स ऑल्सो, क्योंकि ऐसा हुआ था जब मैंने PYQs और आंसर्स राइटिंग की थी ना, तो क्योंकि उसमें चीज़ें रिकॉल करनी होती हैं, रादर देन प्री में यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, आपको उसी के लॉन्ग सोचना है, राइट। प्रीलिम्स में एक ना पेरिफेरल नॉलेज चाहिए होती है, यू माइट बी ओनली गेटिंग 30 to 35 क्वेश्चंस विच यू नो डायरेक्टली करेक्ट। अदर क्वेश्चंस जो हमने 60 या 65 तक पहुंचना है, फॉर दैट यू नीड काइंड ऑफ पेरिफेरल नॉलेज कि ये स्टेटमेंट इज़ मोर लाइकली टू बी राइट और रॉन्ग। वो जब आप PYQs लिखते हो ना मेंस के, क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा है और जो प्री का सिलेबस है वो मेंस का ही सबसेट है, तो जब आप उसके PYQs लिखते हो यू ट्राई टू फोर्स योर ब्रेन टू रिकॉल थिंग्स एंड कनेक्ट थिंग्स, तो वो आपके प्रीलिम्स में हेल्प करेगी। This was my experience. The more I wrote for mains, the better my pre got. सर मोस्टली मतलब ऐसा होता है कि PT 365 रहता है, करंट्स जो आते हैं वो लास्ट मार्च टू अप्रैल टू मई तक चलता है वो सब। तो मतलब आपको उस टाइम पे नया चीज़ पढ़ना सही है इस रिगार्डिंग की, मतलब उसी टाइम पे साइंस टेक का भी जितना भी नहीं, देखो सी विद रिगार्ड्स टू दीज थिंग्स आई वुड से फॉलो द मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन फॉलो करने पे द वे यू हैव टू डू इज रीड 5 पेजेस अ डे। 100 पेजेस ही होते हैं आई वुड से विच आर ऑफ यूज़, तो इन 20 days you will be through with the magazine. In 1 month you have 10 days free. So divide it like that. My advice would be follow the monthly magazine rather than the PT 365 compilation at the end, क्योंकि वो पूरी compilation पढ़ने में एक तो mental pressure भी होता है कि इतनी compilation पढ़ने वाली पड़ी है, उसको याद भी करना है। If you had broken it down into chunks through the year, see it is a paper of consistency. इट इज़ नॉट अ पेपर ऑफ कि एक दिन में मैं सारा तय कर लूँगा, जैसे इंजीनियरिंग में करते हैं। इफ़ एनीबडी इज़ फ्रॉम इंजीनियरिंग हेयर को पता होगा एक रात पहले पढ़ते हैं तो पेपर क्लियर हो जाता है इंजीनियरिंग का। दिस इट डज़ नॉट हैपन हेयर, इट इज़ अ पेपर ऑफ कंसिस्टेंसी। यू हैव टू डू इट एवरी डे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट, दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स।
So I used to follow by magazine monthly, read it 5 pages every day. जैसे ही 5वां पेज खत्म हुआ, अगर वो टॉपिक लेट्स से 4.5 पेज पे खत्म हो गया तो दैट्स डन, या जैसे ही लास्ट टॉपिक 5th पेज पे थोड़ा आगे गया, जैसे ही खत्म हुआ आई एम डन विद द डे. 5 पेजेस 6 पेजेस उसके नियर अबाउट. सो फॉर दैट आई ऑल्सो यूज टू मेक नोट्स. मेरा एक पैरामीटर होता था कि 10 पेजेस को एक पेज में करना कन्वर्ट. सो 120 पेज और 100 पेज लेट्स से दिस मैगजीन वुड बी कन्वर्टेड टू 10 पेजेस एंड 12 मैगजीन्स विल बी 120 पेजेस. राइट, उसको आप अगर 1:15 कर लो तो इवन बेटर. सो रादर देन रिवाइजिंग 1200 पेजेस, और क्योंकि उसमें ज़्यादा भी होगा मटेरियल, आपकी जो मंथली मैगजीन है PT 365 से, उसमें मटेरियल ज़्यादा होता है. फर्स्ट यू कैन रीड मोर मटेरियल, यू कैन रिवाइज बेटर. हर संडे 6 डेज अ वीक आप पढ़ो. संडे को जो करंट अफेयर्स का स्लॉट है उसे रिवाइज कर लो, उसको रिवाइज करने के लिए रख लो, बिकॉज यू हैव 10 डेज फ्री. सो डूइंग इट कंसिस्टेंटली विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स रादर देन कि एंड में एक PT 365 पढ़ ली. आई यूज़ टू लाइक टिल अप्रैल में पढ़ता था. लाइक लास्ट मैगजीन जैसे अब अप्रैल में आएगी तो दैट विल बी अबाउट 15-16 अप्रैल या 20 अप्रैल को आती थी. दैट आई डिड नॉट गो फॉर इट, क्योंकि वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी जब तक मेरा पेपर है. सो अगर मई में है, सो आई थिंक मार्च की में शायद फरवरी की आती है, 1 महीने लेट चलती है. सो द मार्च मैगजीन आई विल रीड. आई थिंक इट इज़ फॉर फरवरी, सो टिल फरवरी आई यूज टू डू माई करंट अफेयर्स. Sir, during your preparation, job preparation के whole first stage और second attempt में है, तो उसमें आपके motivation के condition कैसे थे? See, like how did it fluctuate or how did you maintain yourself? See, एक आई एम वेरी लकी कि मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, क्योंकि सेकंड अटैम्प्ट तक ना चीज़ें बहुत होती हैं करने के लिए. सो आई हैड ऑलवेज हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि अच्छा अभी आंसर राइटिंग में इम्प्रूव करना है, या फिर एथिक्स नहीं किया था पहले तो अब एथिक्स करना, 2 महीने एथिक्स में लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे. सो आई हैड थिंग्स टू डू ऑलवेज. आई हैड क्योंकि प्री के टाइम भी आई हैड अ डिफरेंट प्लान कि अच्छा नया प्लान आई एम गोइंग टू फॉलो. आई हैव 5 months दिस टाइम. पिछली बार मेरे पास 2 ही महीने थे, दिस टाइम आई हैव 5 months. सो आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, इसलिए वो मोटिवेशन का कभी मेरे साथ हुआ नहीं. बट अदर देन दैट आई वुड लाइक टू से कि एक जो मेंटल प्रेशर या इसका इशू होता है, दैट इज़ इन माई ओपिनियन, जो मैंने अपने फ्रेंड्स का भी देखा, मेरे साथ भी था, दैट इज़ ड्यू टू जॉब. कि अगर मल्टीपल अटैम्प्ट्स में ना हो तो बिगेस्ट कंसिडरेशन ही इसके एज भी बढ़ रही है, गैप भी आ रहा है और जॉब नहीं लग रही. तो उसके लिए बी वेरी रियलिस्टिक. अपने आप को जब भी आपको ऐसा लगे, एक बार अपनी स्ट्रेटजी या अपने गोल को या अपने पाथ फॉरवर्ड को, फ्यूचर को एक बार रियलिस्टिकली इवैल्यूएट कर लीजिए कि आपके क्या कंसिडरेशंस हैं. येस, दिस इफ़ वी टॉक अबाउट जॉब्स, दिस इज़ नो इक्वल. UPSC सिविल सर्विसेज के थ्रू ब्यूरोक्रेट बनने में देयर इज़ नो इक्वल जॉब टू बी अ ब्यूरोक्रेट, बट स्टिल एनी जॉब इज़ बेटर देन नो जॉब. सो एक उसको रियलिस्टिकली इवैल्यूएट कर लीजिएगा कि इज़ इट फिजिबल फॉर मी टू कीप गिविंग अटैम्प्ट्स, और शुड आई गो फॉर अ जॉब एंड देन कम बैक टू द UPSC साइकिल. सो वो एक कंसिडरेशन डेफिनेटली होगी. आई एम लकी कि मेरा अभी सेकेंड अटैम्प्ट में हो गया, सो मेरे को उस फेज से कभी जाना नहीं पड़ा. बट ये एक चीज़ प्लीज़ इसको रियलिस्टिकली अपनी प्रेपरेशन को ज़रूर देखें. Any more questions? So regarding newspaper, did you make notes from newspaper? Yes, I used to make notes for newspaper. So उसमें what I used to do was from editorials. Yes, everybody will take out facts. Everybody will note down facts that I will have to use. But I think the more important thing from newspaper is to take out the arguments. For example, I'll give you an example. There was a article regarding climate change from a professor of IIT, I think Delhi or Bombay, some IIT. Right, his argument was that we are looking at 1.5 degree, 1.7 degree or 2 degree, that is our focus. But what is the tangible impact of that? Is our focus is only that, okay, it has gone 1.5 degree above the industrial level, or there should be a tangible impact that we should be looking. Essentially his goal, his point was that we should be looking at disasters that are coming through it. We should be more focused on that. That okay, if 1.5 degrees centigrade, so what kind of disasters or what kind of, let's say, agriculture productivity might be hampered, heat waves will take place, cyclones and all other stuff. So that was his argument, that rather than looking at just numbers, we should look at what the tangible impacts are. So these kind of arguments you have to figure out. These kind of arguments you have to note down based on the data or based on the facts or whatever reports they are quoting. Another example that I have, recently Supreme Court limited governor's powers with regards to time, right? They have 3 months, 3 months they have to clear the bill or 1 month, right?
So there was again an article in which 90% of the article was about what are the timelines or what are the facts of the case or whatever Supreme Court has adjudged. In 10% of the article, there was opinion of two prominent people. One was a Supreme Court, I think, lawyer, and another was a constitutional expert. They said that this judgment will, number one, help in improving federalism, which I think we can all connect. But second, they said that this kind of precedence can be extended to collegium. Why? Because even in that, sometimes we read that there is an issue of appointment and delay in appointments, right? So the crux of the article is that Supreme Court can impose limits so as to ensure the smooth working of constitution, right? So that is the argument. Now that argument, this case as an example, you can use anywhere where there is an issue of timelines. So we figure out the arguments that they're trying to make, what their basic core is, what is their basic point. That you take out along with the data, whatever they are basing that argument on. Because for example, another example, one nation, one election, we had a question as well. So in that, everybody says that cost will come down. But if people had read the newspaper, in one article it was quoted that Election Commission of India and Niti Aayog's report says that the cost will come down from rupees 10 per capita to rupees 5 per capita. So these kind of things you have to figure out, you have to take out from, right? So how long it should take ideally? How much time? For newspaper? To make notes, to read the newspaper. See, in the starting it will take time, I agree. When I started reading newspaper, it used to take me about 1.5 hours or maybe 2 hours. But eventually it will come down. Because you have to keep writing PYQs as well. Only then you will figure out what articles to read and what not to read. I used to read the front page, the foreign page, the science page, and the editorial page. Eventually, in 45 minutes to 1 hour, I was able to read the newspaper and make notes. So first is that you will get used to it, and second, you also need to know what to read. That will come from PYQs only and practicing only. So ये जो उल्टा लटकना है ना, ये ऐसे ही लटकना है. You have to keep practicing. That has been my motive, एक कह लो foundation of my preparation. Did you have any group discussion sessions throughout your preparation? No, I am a resident of Delhi itself. So earlier used to come for offline classes for my GS, but because my commute used to take about 1 hour and plus fatigue and all of that stuff, so it used to take 2 hours of my day. So I stopped coming to offline classes. I took online and then did on my own. I had no social circle. And my schooling is from Punjab, my college is in Chandigarh, so I don't even have any school friends here. So I used to stay in my room. Though it isn't that you have to cut off everything. There are students who used to have their social circle, but the point is this: 8 hours, 9 hours, focus study. After that, out of 15 hours, if you can give 8-9 hours, you have 6-7 hours still remaining. So you can have that for your entertainment or whatever, or you can devote it to your hobby as well, right? So it isn't that if you are alone, you prefer to study alone, like I prefer to study alone as well. So it is not like that if you prefer to study alone that you have to find a circle, and it is not that if you prefer to have a social circle and that you have to study alone. That again, you have to look to yourself, what makes sense to you. Anything else? In the notes of newspaper, when we are making everyday notes from newspaper, then it will become very messy, mixed everything. So can you please? My suggestion is make online notes, because then you can edit them easily. Another benefit is when themes repeat, you can edit right where the theme is repeated, and you can read the last time whatever notes you made and link them together. Like for example, a question article about BRICS came, the BRICS organization. Next time came about SCO. Now you can link that, okay, certain countries are same, the lead countries are same, so maybe there can be a link. So this is how you, like we say, na, link करने हैं subjects. This is how you link. Better. कि आपको स्टार्टिंग में 1.5 या 2 आवर्स लगते थे न्यूज़पेपर से नोट करने, लेकिन उस टाइम पे तो मतलब जैसे हमारे फर्स्ट टाइम पे जीएस और ऑप्शनल की स्टार्टिंग हुई, इतनी जल्दी मतलब न्यूज़पेपर को कैसे क्रैक कर लिया कि इसको 1.5 घंटे में खत्म करने का? See, मैं वही कर रहा हूँ. It will take time, क्योंकि you will get used to reading fast first of all, and secondly कि skip करना बहुत ज़रूरी है. Now आर्टिकल कैसे समझ आ सकती है, क्योंकि जैसे पॉलिटी अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें अगर बाई चांस जियोग्राफी या फिर कुछ और आर्टिकल आ रहा है तो उसको कैसे फिर 1.5 घंटे में कैसे पढ़ेंगे?
सी वो आपको या तो आप पढ़ के आप उसको नोट डाउन कर लीजिए जितना समझ आता है। वो ऐसा होता है कि क्योंकि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था तो पॉलिटी अभी पढ़ी नहीं थी, बट स्टिल आई एम रीडिंग पॉलिटी आर्टिकल्स। तो जब पॉलिटी के आर्टिकल्स के रिगार्डिंग मैंने अपने बेसिक कोर्स में पढ़ा, सो दैट हेल्प मी इन माई बेसिक कोर्स। सो जो भी चीज़ पढ़ी होगी ना, दैट विल हेल्प यू सर्टन समवेयर। इधर आपका बेसिक्स के पढ़े आपको वो न्यूज़पेपर जल्दी करने में हेल्प करेगा, या फिर आपका न्यूज़पेपर थोड़ा टाइम लगाया वो आपके जीएस में हेल्प करेगा। सो वन वे और द अनदर इट विल हेल्प, बट येस ये कंसिडरेशन होती है कि टिल द टाइम योर सिलेबस इज़ कम्प्लीट थिंग्स विल बी अ लिटल मैसी, या टाइम थोड़ा क्रंच लगता है। सो आई वुड से कि अभी आपका अगर यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, तो सर कब तक कह रहे हैं? अक्टूबर तक आई थिंक आपका ख़त्म हो जाएगा, या सितंबर तक ऑप्शनल, राइट? तो उसके बाद इट विल आपको काफ़ी टाइम फ्री निकल आएगा। नहीं तो बात करते रहो, मैं खड़ा उधर रहो आराम से। हाँ, Ask the questions. Carry on. 10 मिनट अभी और हैं। सर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में क्या चेंज किया आपने फर्स्ट से सेकंड? सेकेंड स्ट्रेटेजी वॉज स्टैटिक बेस्ड, कि स्टैटिक्स पे बहुत फोकस किया, राइट? योर फाउंडेशन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर प्रीलिम्स। इवन इफ अगर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस है ना, वो स्टैटिक से आते हैं। इन 2024 प्रीलिम्स एथिक्स कमेटी का क्वेश्चन था, दैट वाज इन करंट अफेयर्स, बट उसकी जो स्टेटमेंट्स थी दोज वर सोर्स फ्रॉम स्टैटिक, कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन है, मेंबरशिप क्या होगी, उसका मैंडेट क्या है। इवन इफ द टॉपिक इज़ करंट अफेयर्स बेस्ड, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम स्टैटिक। सो स्टैटिक इज़ द बेस। सेकेंड थिंग जो प्रीलिम्स में एक इंटेंजिबल हेल्प किया, दैट वाज कॉन्फिडेंस। इन 2023 पेपर का पैटर्न देख के थोड़ा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट हुई थी, आई गॉट अंडर कॉन्फिडेंस। सो मैंने अटेम्प्ट ही 70 क्वेश्चन किए थे, एंड स्टिल आई कुड गेट टू 67-68 मार्क्स, अबाउट 2-3 क्वेश्चन अवे फ्रॉम क्लियरिंग द कट ऑफ। So in my second attempt, I was very confident that I have prepared well, and I was confident in my preparation that whatever I have done sufficient, and it should get me through. So confidence is second thing, which is an intangible, which I think is a common denominator in all three phases of the exam. Anything else? Sir, 10 hours कैसे consistently maintain करते हैं? See, I again told you it's not consistent. It will go up and down. Right, when it goes down you have to be कि I have to get back to that time. It will go up and down. It does not happen कि आप 3 साल के लिए रोज़ 10 घंटे 3 साल पढ़ पा रहे हो. It does go up and down. बस बात वही है, when it goes down you have to be very conscious कि I am in my down time, कि I am not able to study well, मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पा रहा या दे पा रही. I have to come back to where it is required. Any mistakes that you have done that you would not recommend us to do in our preparation? Or you have seen other students preparing while you were preparing as well? जो गलतियाँ वो करते थे आपने हमें बताया कि हम ना करें। गलतियों में पहली तो ये है कि डोंट लैक कॉन्फिडेंस, एंड सेकेंडली बी वेरी फोकस्ड, राइट, एंड फॉलो व्हाट टीचर्स से। दे जैसे डीपी वाजपेयी सर हैं, दे हैव सीन द एग्ज़ाम क्लोजली फॉर द लास्ट 25-30 ईयर्स। सो जो भी वो कह रहे हैं विद रिगार्ड्स टू फिजिक्स, जो फिजिक्स में ही वो बातें कह रहे हैं ना, दे आर ट्रांसफरेबल टू जीएस। सो एंड जो बेसिक्स हैं, डू दोज, लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स, आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, दैट इज़ द मंत्र। वो कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं होता कि हमने कुछ नए ईजाद कर लिया तो वो कर लिया, ऐसा नहीं होता। बेसिक्स आर द सेम, एवरीबडी डज दो सेम बेसिक्स, बट एनीबडी हु डज द बेसिक्स वेल सिर्फ वही कर पाते क्लियर। और वो बेसिक्स करने मैं कहूँगा कि इजी हैं, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल की डेफिनेशन भी चेंज होगी इस पेपर में। मुश्किल की डेफिनेशन वो है जो जिसमें पता नहीं है करना क्या है, कि डायरेक्शन ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। इफ़ यू हैव अ डायरेक्शन तो हार्ड वर्क आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, कि अगर यही है कि हम मेरे को बस मेहनत करनी है, दैट शुड बी कि हाँ ये तो हो जाएगा, दैट इज़ ईजी, मेहनत मैं कर लूँगा। डायरेक्शन वो उसके लिए आपके टीचर्स हैं, राइट। सर के लेक्चर्स के साथ आप वैल्यू एडिशन के लिए क्या क्या करते हैं? मैंने सर के लेक्चर्स ही फॉलो किए, एंड आई यूज्ड टू डू द PYQs, दैट वाज ऑल आई डिड फॉर फिजिक्स। एडिशनली जब मैं टेस्ट सीरीज लिखता था तो सर जो मॉडल आंसर्स देते हैं टॉपर्स के, उसमें आंसर्स होते हैं, तो उसमें जो इफ़ आई कुड फिगर आउट कि अच्छा प्रेजेंटेशन ऐसे इंप्रूव करनी है, दैट आई यूज़ टू अप्लाई ऑन ऑल क्वेश्चंस। ये नहीं कि मैंने अगर क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन में देख लिया कि इस तरीके से प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ उसी क्वांटम मैकेनिक्स के उसी क्वेश्चन में इंप्रूव करूँगा। आई एम गोइंग टू ट्राई टू अप्लाई इट ऑन ऑल क्वेश्चन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। आंसर राइटिंग के देखो 3 पैरामीटर हैं, फर्स्ट इज़ डिमांड, सेकेंड इज़ योर कंटेंट, एंड थर्ड इज़ प्रेजेंटेशन, right? This is all you have to look for. Demand in physics is pretty straightforward.
कंटेंट यू कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, आपका कंटेंट इम्प्रूव होगा. एंड प्रेजेंटेशन यू रिव्यू कि व्हाट आई कैन इम्प्रूव इन प्रेजेंटेशन. At least in physics we can expect कि ये question तो हम first time नहीं देख रहे हैं, कहीं ना कहीं PYQ या class notes या कहीं ना कहीं तो देखा होगा. Did that happen to you in exam? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. मोस्टली क्वेश्चंस वर लाइक आई हैड सीन. पेपर 1 में इट वाज माय ब्लंडर्स ओनली कि नंबर नहीं आए. पेपर 2 में आई गॉट 164. वो इट वाज लाइक ए पेपर वाज कि हाँ फ्रॉम द नोट्स. हाँ, इस एक चीज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू से, जो गलती की बात कर रहे थे, एक चीज़ जो मैंने लेट पकड़ी अपनी, बट पेपर 2 में मेरी ठीक होगी, पेपर 1 में नहीं हुई. कभी कभी ऐसा होता है कि लेट्स से मैकेनिक्स है, उसमें 5 टॉपिक दिए हैं सिलेबस में. ऑन एवरेज योर नोट्स इज़ ऑफ टोटल 20 पेजेस, सो 4 पेजेस पर टॉपिक ऑन एवरेज. बट किसी टॉपिक के नोट्स 1 पेज के हैं, किसी टॉपिक के नोट्स 8 पेज के हैं. सो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि जो 1 पेज का टॉपिक है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, even though that is 5% of your notes, but that is 20% of your syllabus. So you have to complete the syllabus A to Z, cover to cover syllabus complete होना चाहिए. ये चीज़ मेरे से गलती हुई थी. सर के नोट्स के साथ how much emphasis did you give on books? Only such notes. हाँ. थैंक यू. ओके, थैंक यू नितिन. Thank you, sir. Very nice. नाम ही अंगद जी है. जी कहने के लिए इनके फादर आए हमारे पास और इन्होंने कहा कि इनका नाम सेकंड गुरु हैं अंगद जी. गुरु अंगद देव जी. तो अंगद गुरु जी का सम्मान होना चाहिए, इसलिए नाम के साथ ही अंगद जी रख दिया. और इन हिज सक्सेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल विच आई सी. यस सर. पता नहीं इन्होंने बताया कि नहीं बताया, सो आई जस्ट वांटेड टू रिपीट व्हाट आई सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम humbleness down. He has got blessings of गुरु जी. सतगुरु उदय सिंह जी. सतगुरु उदय सिंह जी नामधारी सेक्ट के संत हैं और उसके हेड हैं पूरे इंडिया भर, पूरे वर्ल्ड भर में. हाँ जी सर. और उनकी ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स. सो इट हैज बीन डिवाइन ब्लेसिंग्स गिव्स यू सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स. मेनी पॉजिटिविटी कम्स ड्यू टू दोज ब्लेसिंग्स. सो बस मैं यही ऐड कर रहा था, अदर देन द ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर्स एंड पेरेंट्स, वो सबके साथ होती हैं. तो अगर कोई गुरु की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपके, तो दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल. क्योंकि इन दिस जर्नी इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड टार्चुअस जर्नी वेयर यू विल फेस मेनी टाइम्स लो, एंड इन दोज लोज दैट द ब्लेसिंग्स हेल्प्स यू अ लॉट. दैट इज द ओनली थिंग आई विल एड. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you.